جیو نیوز پر یو ایس الیکشن اسپیشل سیریز کا پروگرام جاری ہے. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت ٹیکساس سے جیو نیوز کے نمائندے راجہ زاہد خانزادہ شامل ہیں اس پروگرام میں. راجہ زاہد، اس بار کئی مساجد میں پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں. کیا مختلف مساجد کے پیش امام بھی ووٹرز کو کسی ایک امیدوار کی طرف مائل کر رہے ہیں؟ جی، یہاں پر مساجد کے امام بیسیکلی کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو یہاں پر مساجد میں جو اجتماعات ہو رہے ہیں اور جمعے کی نماز ہو رہی ہے، اس کے اندر امام جو ہیں وہ اس بات پر مسلمانوں کو زور دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان زیادہ سے زیادہ تعداد میں جائیں اور ووٹنگ کریں. لیکن جو ٹرمپ کا مشیگن کے اندر جو اعلان مسلمانوں نے کیا تھا، اس کے بعد کچھ جو لوگ ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. ٹرمپ کی پالیسیز ہمیشہ ہی مسلمانوں کے فیورزم میں گئی ہیں. اگر آپ دیکھ لیں کہ جب افغانستان کی بھی وار تھی، ریپبلکن ور ان چارج. پاکستان میں کتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئی، اور اس کے بعد اگر آپ ٹینیور دیکھیں اس کا ڈیموکریٹک کا، تو اتنی اچھی صورتحال نہیں تھی. انڈسٹری پاکستان میں تو اب کچھ نام کی رہی نہیں نا، آپ کسی بھی سیگمنٹ کو لے لیں. That we should get out of vote. ہمیں اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے. جیسے تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس میں اور ڈیموکریٹس میں وہ لوگ ہمارا ووٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ریپبلکنز میں انوالو ہو کے ان کے ساتھ ووٹ دے کے آئی تھنک ہم لوگ اپنی وائسز بھی ہرٹ کرا سکتے ہیں، پالیسیز بھی چینج کرا سکتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے حوالے سے جو مساجد ہیں وہ اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ڈالس کے اندر جو مساجد ہیں، کئی مساجد تقریباً وہاں پر 70 کے قریب مساجد ہیں، لیکن زیادہ تر مساجد میں اس بار پہلی بار پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے. اس پولنگ اسٹیشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر مسلمان اپنے ووٹ کاسٹ کر سکیں، اور بہت سے مسلمان جو کہ اس وقت دونوں پارٹیوں سے نالاں ہیں، وہ تھرڈ پارٹی آپشن کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر ہاشمی، ویسے تو پاکستانی امریکن ریپبلکن جاوید انور نے توقع ظاہر کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی الیکشن جیت جائیں گے. انہوں نے یہ بات ٹیکساس میں جے نیوز کے نمائندے راجہ زاہد خانزادہ کو انٹرویو میں کہی. جو حالات ہیں ابھی کے، اس کے لحاظ سے میرا خیال ہے ٹرمپ کو جیت جانا چاہیے، کیونکہ جب ٹرمپ نے آفس چھوڑا تھا اس زمانے میں انٹرسٹ ریٹ جو تھا نا بہت لو تھے. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں بائیڈن کے زمانے میں انٹرسٹ ریٹ اگر آپ ایک گھر خریدنا چاہ رہے ہیں تو 9% سے اوپر چلے گئے تھے انٹرسٹ ریٹ. حالانکہ ایک ینگ کپل جو 9% انٹرسٹ ریٹ افورڈ نہیں کر سکتا، اس ٹرمپ کے زمانے میں وہ 4% سے بھی کم تھے. اسی طرح سے مہنگائی ٹرمپ کے زمانے میں بالکل نہیں تھی، لیکن بائیڈن کے زمانے میں انفلیشن کا ریٹ 9 اور 10% کے اوپر چلا گیا تھا. تو اس طرح سے جو لوگ آرڈنری سیلری پہ رہتے ہیں ان کا گزارا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی، ہر کھانے کی، ہر چیز کی پرائس 9-10% بڑھ گئی تھی. تو ایک آرڈنری آدمی جس کی فکس سیلری ہے اس کے لیے 9-10% انفلیشن اس کے مطلب وہ ان پے چیک میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا تھا. تو میرا خیال ہے لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس کے زمانے میں کیا اکنامک کنڈیشنز تھی، کیا انفلیشن تھا. آپ نے تقریباً 2 ملین سے کتنا فنڈ؟ کوئی 2 ملین کے اوپر دیے ہیں میرے بیٹے کے لیے. امریکہ کی دیگر ریاستوں کی طرح نیو یارک میں بھی پاکستانی کمیونٹی میں سے بعض کاملا ہیرس اور دیگر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینے میں. Kamala, you're fired. Get out, Kamala, get out. Is he fit to do the job? And I think that's a question that is an open-ended question that he needs to answer. USA میں اردو زبان کے سب سے مشہور، قابل اعتماد اور پسندیدہ نیوز نیٹ ورک جیو نیوز پر دیکھیے US الیکشن 2024، اہم امیدواروں کی پالیسیز اور جیت کے امکانات پر ماہرین کی آراء. ڈیموکریٹس یا ریپبلکنز اس بار وائٹ ہاؤس میں ہوگی کس کی حکمرانی؟ الیکشن ریزلٹس اور عالمی سیاست پر اس کے اثرات. سوئنگ اسٹیٹس اس بار کیا رنگ دکھائیں گی؟
पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी किसको देने जा रही है वोट? अमरीकी सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक खबरें और तस्वीर देखिए यूएस इलेक्शन 2024 स्पेशल शो रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। You're fired. Get out, Kamala. Get out. Is he fit to do the job? And I think that's a question that is an open-ended question that he needs to answer. यूएसए में उर्दू जबान के सबसे मशहूर, काबिले एतमाद और पसंदीदा न्यूज नेटवर्क जियो न्यूज पर देखिए यूएस इलेक्शन 2024। अहम उम्मीदवारों की पॉलिसी और जीत के इम्कानात पर माहिरीन की आरा। डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स, इस बार व्हाइट हाउस में होगी किसकी हुक्मरानी? इलेक्शन रिजल्ट्स और आलमी सियासत पर इसके असरात। स्विंग स्टेट्स इस बार क्या रंग दिखाएंगी? पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी किसको देने जा रही है वोट? अमरीकी सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक खबरें और तस्वीर देखिए यूएस इलेक्शन 2024 स्पेशल शो रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। यूएस इलेक्शन स्पेशल की चौथी कड़ी, कमला हैरिस जीते या डोनाल्ड ट्रंप, भारत और भारतीय कम्युनिटी को दोनों ही सूरतों में फायदा क्यों होगा? अमेरिकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के कितने अफराद इस बार उम्मीदवार हैं? ये और कई दीगर मौज़ूआत हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनैद और जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूएस इलेक्शन स्पेशल 2024। हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद है रियासती असम्बली के रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान, टेक्सास से रियासती असम्बली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सुलेमान लालानी, मैरीलैंड से हमारे साथ हैं रियासत के साबिक रुकन असम्बली डॉक्टर जलीसी। तनवीर अहमद भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ही के करीब हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं कंट्रोलर जियो न्यूज नसीम हैदर जो आलमी उमूर के तर्जकार भी हैं। यहाँ हम आपको ये अहम बात बता दें कि अमेरिका की 50 रियासतों में से सिर्फ टेक्सास ही ऐसी रियासत है जहाँ इस वक्त रियासती असम्बली में 2 पाकिस्तानी अमेरिकन मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं। उनमें से एक है वकील सलमान भूजानी और दूसरे डॉक्टर सुलेमान लालानी। दोनों का ताल्लुक बुनियादी तौर पर कराची से है। सबसे पहले हम टेक्सास जाएंगे जहां पर अर्ली वोटिंग और इंतखाबी इश्यूज के बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे राजा जाहिद खानजादा। अमेरिका के चौथे बड़े शहर ह्यूस्टन में कबल वोटिंग के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। ह्यूस्टन से रियासती असम्बली के रुकन डॉक्टर सुलेमान लालानी जो इस वक्त भी डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। अपनी कम्युनिटी को आके एंगेज होना जरूरी है और आके वोट डालना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एंगेज नहीं होंगे, जब तक हम अपनी बातें लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक इसी तरह चलता रहेगा। ह्यूस्टन में फोर्ट बेन काउंटी में आला पुलिस ऑफिसर के ओहदे के लिए 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार 2 बड़ी पार्टियों के टिकट पे मद्दे मुकाबिल हैं। नबील शाइक डेमोक्रेट और अली शेखानी रिपब्लिकन पार्टी के टिकट होल्डर हैं। दोनों की जानिब से इंतखाबी मुहिम अपने जोरों पर है। इस जमीन में इनका कहना है कि मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा बेटरमेंट की कोई सोच नहीं थी लोगों की, लेकिन हो रहा है। 2024 रिपब्लिकन की तरफ इस तरीके से जा रहा है, यू नॉट बिलीव आवर साउथ एशियन कम्युनिटी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी गोइंग टूवर्ड्स, जो कभी डेमोक्रेट हुआ करती थी अब वो आके रिपब्लिकन वोट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी रिस्पांस है बहुत स्ट्रांग है। I think mainly because of the stance that I took on Palestine. I'm the only and the first elected official that spoke out on the issue demanding a ceasefire. And so when you look at the support from the Muslim community, it's very strong to re-elect myself, inshallah. दीगर उहदों के उम्मीदवारों ने कहा है कि गजा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हमें सिर्फ सदारती इंतखाब ही नहीं बल्कि मजमूई इंतखाबी अमल के बारे में सोचना होगा। वोट तो जाहिर है दोनों पाकिस्तानी हैं, दुख होता है, काश एक होता तो हम 100% सपोर्ट उसको करते हैं, मगर इस वक्त जाहिर है मैं सपोर्ट नबील को कर रहा हूँ। Nabil, he's running again. He's re-electing for a constable. He's amazing. He's a good person. He take care of his people and his community. अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि किसको वोट देना है।
people, we have made a list for Fort Bend County and Harris County of people that have spoken against the genocide and for a ceasefire. एक फ़लस्तीन का बिल्कुल बहुत एक हमारा मसला है, लेकिन आप और भी चीज़ें देखें जो दोनों पार्टीज हमें प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, इन्फ्लेशन बढ़ गई, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आई, तो ये चीज़ें देखें। कैमरामैन राहिल के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा, जियो न्यूज़, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका। टेक्सास की अर्ली वोटिंग के बारे में आपने तफसील देखी। लालानी साहब, इस रिपोर्ट में आप इंतखाबी मुहिम में काफ़ी मसरूफ भी दिखाई दिए हैं। जियो न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। सब लोग वाकिफ हैं कि टेक्सास एक रिपब्लिकन रियासत है, कितना इम्कान है कि आप दोनों अपनी नशस्तों का दिफा कर सकेंगे? इंशाल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपके सबके सामीन और नाजरीन को हमारी तरफ से सलाम और आदाब। कोशिश बिल्कुल जारी है, इंशाल्लाह उम्मीद भी बहुत है और काफ़ी गहमा गहमी है, लोगों का साथ है, सपोर्ट है। सो इंशाल्लाह 100% वी विल री-इलेक्ट आवरसेल्व्स। अब आमिर सुल्तान साहब, न्यूयॉर्क वैसे तो डेमोक्रेट रियासत है, अब तक जो अर्ली वोटिंग हुई है इसकी बुनियाद पर आपको अपनी नशिस्त के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या उम्मीद लगाते हैं? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, यानी ब्लू स्टेट है, लेकिन लॉन्ग आइलैंड जो है वो प्रिडोमिनेंटली रिपब्लिकन कंजर्वेटिव लोग हैं यहाँ पे, पुराने रहने वाले जो है ना, समझिए नॉन इमिग्रेंट्स हैं मोस्टली यहाँ पे, तो वो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स हैं। तो अभी जो अर्ली वोटिंग के जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं हमारे पास 3-4 दिन में, तो रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव पार्टी के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो नेचुरली जितने भी लोग जो रिपब्लिकन कंजर्वेटिव टिकट्स पे हैं उनके रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आ रहे हैं। मैरीलैंड में डॉक्टर जलीसी के पास चलते हैं, जो रियासती असम्बली के 2 बार रुकने असम्बली रह चुके हैं। जलीसी साहब, हम ये पूछेंगे कि इस बार पहले तो बताइएगा आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उसकी क्या वजह है, और फिर रियासत कनेक्टिकट से सेनेट का इलेक्शन लड़ने वाले आपके दोस्त डॉक्टर सऊद अनवर की पोजीशन इस वक्त कैसी है, क्योंकि वो जीत जाते हैं तो गालिबन उनकी ये हैट्रिक हो जाएगी? डॉक्टर सऊद अनवर जो हैं वो इंशाल्लाह जीत जाएंगे और उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। और जहाँ तक ताल्लुक मेरे ना लड़ने का है, तो मैरीलैंड के इलेक्शन जो हैं वो हर 4 साल पे होते हैं, तो हमारे अगले इलेक्शन 2 साल बाद। नसीम हैदर, अमेरिका जैसे माशरे में जहाँ इतना बड़ा मुल्क है और फिर वहाँ की सियासत भी बहुत आसान नहीं है, वहाँ पे पाकिस्तानी उम्मीदवारों का हिस्सा लेना, कई ऐसी रियासतें जहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पर ले रहे हैं या चांसेस भी हैं कि बहुत से लोग जीत सकते हो? देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट वेलकम बैक इस खुसूसी शो में। इससे पहले कि हम मेहमानों से एक बार फिर बात करें, आपको ले चलेंगे टेक्सास, जहां जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा जाहिद खानज़ादा मौजूद हैं। राजा जाहिद, आम वोटर्स क्या समझते हैं कि ट्रंप हार गए तो क्या अमेरिका में नस्ल परस्ती बढ़ेगी या मामला काबू कर लिया जाए? जी, यहाँ पर मेरी मुख्तलिफ मुसलमानों से बातचीत हुई जिन्होंने अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। I think with Donald Trump's last reign, there was a bit of controversy there, but I don't think anything happened in which he went too far. So maybe we're hoping that if he does get elected this time, that he doesn't go too far this time either, and just, you know. The policy of both the parties would not change against the Muslims. There could be a racial, some kind of problem, but I don't feel that it's going to go that far. Donald Trump जो है 2015 में उनकी वजह से बहुत मसले हुए थे। As a hijabi, I had to face a lot of trouble. डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद रेसिज्म बढ़ेगा। रेसिज्म का इस वक्त जो हवा चल रहा है ये इलेक्शन के लिए भी है। मेरे ख्याल में इन प्रैक्टिस जो है इलेक्शन के बाद ये काफी कम हो जाएगा। रेसिज्म तो यहाँ पर हमेशा रहा है, रहेगा। कभी ज़ाहिर होता है, कभी ज़ाहिर नहीं होता है। रेसिज्म तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। हम ये चाहते हैं कि ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, मुस्लिम कम्युनिटी को वो लोग इम्पोर्टेंस दें। डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री को देखते हुए रेसिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि जो उनका पिछला टर्म भी था, मैं रह चुका हूँ यहाँ पर, बहुत तकलीफें हुई थी। ट्रंप की हुकूमत जितनी देर रही है कोई वॉर नहीं हुई, कोई
फाइट वगैरह कोई जंगें वगैरह नहीं हुई, बिजनेस बहुत अच्छा था। बता नहीं सकते कि कल के दिन उनको लगा कि मुनाफा हो ये जंग रुकाने से तो वो रुका भी दे, या उनको लगे कि नहीं ये जंग कंटिन्यू करनी चाहिए तो वो कर भी दे। फर्स्ट टाइम आए थे तब वो उस जिस तरह की जो स्पीच भी अपने हम लोगों ने देखी उनकी, जिस तरह से उन्होंने पहले स्टांस लिया और जैसे फर्स्ट डे पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर दिया उन्होंने आके, मेरा ख्याल है शायद अब थोड़ा सा वो भी चेंज है। हमें ये देखना है कि मुस्लिम्स के बेस्ट इंटरेस्ट में कौन है और कौन सी पार्टीज हैं यहाँ पे जो मुस्लिम्स के लिए काम कर रही हैं और जो साफ साफ मुस्लिम्स के लिए सपोर्ट कर रही हैं। Select your representative who will help in a bigger manner rather than just seeing two faces is what I would say. मैंने थर्ड पार्टी को वोट दिया है, दोनों जो और हैं खराब हैं। कई मुसलमानों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से रेसिज्म बढ़ेगा, जबकि कई लोगों का ये भी ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं आते तो रेसिज्म जो है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। डॉक्टर अंजुमन हाशमी, डोनाल्ड ट्रंप जब पहली दफा मुंतखब हुए थे उस दौर में जो इक़दाम हुए थे उसके बाद बहुत से पाकिस्तानियों ने भी मेरी उनसे कई से बात हुई, उन्होंने सोचा कि भाई यूएस इलेक्शन 2024 अहम उम्मीदवारों की पॉलिसी और जीत के इम्कानात पर माहिरीन की आरा, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स इस बार व्हाइट हाउस में होगी किसकी हुक्मरानी, इलेक्शन रिजल्ट्स और आलमी सियासत पर इसके असरात, स्विंग स्टेट्स इस बार क्या रंग दिखाएंगी, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी किसको देने जा रही है वोट, अमरीकी सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक खबरें और तस्वीरें देखिए यूएस इलेक्शन 2024 स्पेशल शो रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। आप चाहिए वेलकम बैक इस खुसूसी शो में। इससे पहले कि हम मेहमानों से एक बार फिर बात करें, आपको ले चलेंगे टेक्सास, जहां जियो न्यूज के नुमाइंदे राजा जाहिद खानजादा मौजूद है। राजा जाहिद, आम वोटर्स क्या समझते हैं कि ट्रंप हार गए तो क्या अमेरिका में नस्ल परस्ती बढ़ेगी या मामला काबू कर लिया जाए? जी, यहाँ पर मेरी मुख्तलिफ मुसलमानों से बातचीत हुई जिन्होंने अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। I think with Donald Trump's last reign, there was a bit of controversy there, but I don't think anything happened in which he went too far. So maybe we're hoping that if he does get elected this time, that he doesn't go too far this time either, and just, you know. The policy of both the parties would not change against the Muslims. There could be a racial, some kind of problem, but I don't feel that it's going to go that far. डोनाल्ड ट्रंप जो है 2015 में उनकी वजह से बहुत मसले हुए थे। एज अ हिजाबी आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद रेसिज्म बढ़ेगा। रेसिज्म का इस वक्त जो हवा चल रहा है ये इलेक्शन के लिए भी है। मेरे ख्याल में इन प्रैक्टिस जो है इलेक्शन के बाद ये काफी कम हो जाएगा। रेसिज्म तो यहाँ पर हमेशा रहा है, रहेगा। कभी ज़ाहिर होता है, कभी ज़ाहिर नहीं होता है। रेसिज्म तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। हम ये चाहते हैं कि ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, मुस्लिम कम्युनिटी को वो लोग इम्पोर्टेंस दें। डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री को देखते हुए रेसिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि जो उनका पिछला टर्म भी था, मेरे चुका यहाँ पर बहुत तकलीफें हुई थी। ट्रंप की हुकूमत जितनी देर रही है कोई वॉर नहीं हुई, कोई फाइट वगैरह कोई जंगें वगैरह नहीं हुई, बिजनेस बहुत अच्छा था। बता नहीं सकते कि कल के दिन उनको लगा कि मुनाफा हो ये जंग रुकाने से तो वो रुका भी दे, या उनको लगे कि नहीं ये जंग कंटिन्यू करनी चाहिए तो वो कर भी दे। फर्स्ट टाइम आए थे तब वो उस जिस तरह की जो स्पीच भी अपने हम लोगों ने देखी उनकी, जिस तरह से उन्होंने पहले स्टांस लिया और जैसे फर्स्ट डे पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर दिया उन्होंने आके, मेरा ख्याल है शायद अब थोड़ा सा वो भी चेंज है। हमें ये देखना है कि मुस्लिम्स के बेस्ट इंटरेस्ट में कौन है और कौन सी पार्टीज हैं यहाँ पे जो मुस्लिम्स के लिए काम कर रही हैं और जो साफ साफ मुस्लिम्स के लिए सपोर्ट कर रही हैं। Select your representative who will help in a bigger manner rather than just seeing two faces is what I would say. मैंने थर्ड पार्टी को वोट दिया है, दोनों जो और हैं खराब हैं। कई मुसलमानों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से रेसिज्म बढ़ेगा, जबकि कई लोगों का ये भी ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं आते तो रेसिज्म जो है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। डॉक्टर अंजुमन हाशमी, डोनाल्ड ट्रंप जो चॉइसेस हैं, लिहाजा कम नुकसानदा का इंतखाब ही हमारे लिए बेहतर हो सकता है। ये देखिए मुसलमानों में वोट भी डिवाइडेड हैं, कुछ लोग घर पे भी बैठे हैं, वोट देने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कि एक अच्छी तादाद वोट दे रही है टेक्सास के अंदर। यहाँ अभी तक जो है जो अर्ली वोटिंग में 36% लोग वोट दे चुके हैं।
फ्रेंड्स को, फैमिली को अर्ज करूंगी कि प्लीज निकलें घरों से बाहर और वोट डालें, क्योंकि आपका वोट बहुत मायने रखता है। मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर सका हूँ, क्योंकि दोनों में से कोई भी मेरे लिए तो नहीं एक्सेप्टेबल। सिलेक्शन में कोई वोट नहीं देने वाले, क्योंकि सीधी बात है, दोनों कैंडिडेट्स कोई भी मुसलमान की लड़ने के लिए तैयार नहीं है। The real question this time, which has divided the community, is who to vote for, and the driving force behind that is a conflict going on between Israel and Hamas. रियासत टेक्सास में गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान मुसलमानों ने पहली बार टेक्सास असेंबली में डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर 2 नशिस्तें हासिल की थी, जिनमें से एक डैलस और एक ह्यूस्टन से थी। अमेरिका में होने वाले इंतखाबात में आखिरी दंगल कल मुतवक्के है, लेकिन जो क़ब्ल वोटिंग के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत पीछे रही। इसकी वजह गाजा की वार और दूसरे मसाइल हैं, लेकिन जिन मुसलमानों ने वोट दिए उन मुसलमानों ने ज्यादातर वोट ट्रम्प को दिए, जबकि थर्ड पार्टी की तरफ भी काफी लोग गए। लेकिन जो नीचे की सीटें हैं, जिसमें सेनेट, अरकान असेंबली और दीगरी सीटें हैं, उसके अंदर ज्यादातर लोग डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ मुतवज्जा नजर आए। कैमरामैन राहील के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा, जियो न्यूज, टेक्सास, अमेरिका। Geo News. Kamala, you're fired. Get out, Kamala, get out. Is he fit to do the job? And I think that's a question that is an open-ended question that he needs to answer. USA में उर्दू ज़बान के सबसे मशहूर, काबिल एतमाद और पसंदीदा न्यूज़ नेटवर्क जियो न्यूज़ पर देखिए US इलेक्शन 2024। अहम उम्मीदवारों की पॉलिसीज और जीत के इम्कानात पर माहिरीन की आरा। डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स इस बार व्हाइट हाउस में होगी किसकी हुक्मरानी? इलेक्शन रिजल्ट्स और आलमी सियासत पर इसके असरात। स्विंग स्टेट्स इस बार क्या रंग दिखाएंगी? पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी किसको देने जा रही है वोट? अमेरिकी सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक खबरें और तस्वीरें देखिए US इलेक्शन 2024 स्पेशल शो रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रिपब्लिकन रियासत टेक्सास की डैलस काउंटी में मुसलमान वोटर्स बड़ी तादाद में घरों से निकले हैं। यहाँ सेनेट की नशिस्त पर भी अहम मुकाबला है। मजीद बता रहे हैं राजा जाहिद खानज़ादा। इस वक्त यहाँ मैं डैलस काउंटी के अंदर मौजूद हूँ। आप अगर पीछे देखें तो कैनेडिटन पब्लिक लाइब्रेरी है, जहाँ पर जो है ये काफी पुराना पोलिंग स्टेशन है। जोक यहाँ पर आ रहे हैं और अपने हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों ने इलेक्शन के अंदर वोट नहीं दिया वो इस वक्त जो है वो हर सूरत अपना वोट देना चाहते हैं। वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये टर्न इनटू वोट कास्टिंग सेंटर। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर वोट डालने आ रही है। मिक्स्ड हो रहा है, जिसको जो है कुछ आधे लोग ट्रम्प को दे रहे हैं, कुछ लोग जो है उसको दे रहे हैं कमाला को, तो और कुछ लोग थर्ड पार्टी कर रहे हैं। दो बहुत बड़ी तंजीम और एक छोटी जो नई तंजीम है ग्रीन पार्टी, उनके कैंडिडेट्स को मुसलमान वोट दे रहे हैं। मुसलमानों के वोट काफी बिखर चुके हैं। वो इफेक्टिवनेस नहीं होगी, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छा है कि ये बार बार आके वोट दे रहे हैं। रियासत टेक्सास के अंदर असल जो मुकाबला है वो सेनेट की सीट पर हो रहा है, जिसमें डेमोक्रेट की कोशिश है कि वो सीट को ले जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल नजर आता है। जिसमें टेड क्रूज रिपब्लिकन जो कि काफी अरसे से यहाँ से सेनेटर हैं, जबकि उसकी जगह पे कोलिन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सीट पे इलेक्शन लड़े। सदारती इंतखाब के हवाले से ये रियासत चूंकि रिपब्लिकन रियासत है, तो इस रियासत के अंदर ट्रम्प तो यकीनी तौर पे जीत जाएंगे और ऐसा ही यहाँ पे महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो देसी लोग हैं वो भी काफी ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। कैमरामैन मिनाज बशीर के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा, जियो न्यूज, डैलस टेक्सास, अमेरिका। अपडेट करेंगे आपको। अमरीकी सदारती इंतखाबात में नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। इंडियाना, केंटकी और वेस्ट वर्जीनिया से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए हैं। वर्मोंट, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में कमला हैरिस कामयाब हुई हैं। ट्रंप 90 और कमला हैरिस 27 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा में ट्रंप आगे हैं। न्यू हैम्पशायर और वर्जीनिया
नॉर्थ कैरोलिना में कामला आगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरिस 222 और ट्रंप 219 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट जीत का फैसला करेंगे। ऐवान नुमाइंदगाह में रिपब्लिकन 27 और डेमोक्रेट्स 11 नशस्तों पर कामयाब। अमरीकी सदर के इंतखाबात के लिए अल्बामा, कनेक्टिकट, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया समेत दीगर कई रियासतों में भी पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, जबकि दीगर रियासतों में पोलिंग जारी है। सबसे आखिर में अलास्का में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पोलिंग खत्म होगी। इस वक्त हमारे साथ टेक्सास से हमारे नुमाइंदे राजा जाहिद अख्तर खानजाला मौजूद है। टेक्सास से हमारे नुमाइंदे राजा जाहिद अख्तर खानजाला मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जाहिद, बता दीजिएगा क्या सूरत हाल देखी जा रही है, पोलिंग के वक्त के हवाले से अपडेट कीजिएगा और ओवरऑल टर्नआउट कैसा रहा है? जी, यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर इलेक्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी पोलिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। तकरीबन 15 मिनट हुए हैं, लेकिन जो टर्नआउट था वो काफी अच्छा रहा। और इस वक्त जो है वक्त वोटिंग के अंदर काफी तादाद के अंदर तकरीबन यहाँ पर जो तादाद है रजिस्टर वोटर की वो तकरीबन 19 मिलियन है, जिसके अंदर से 9.6 मिलियन जो लोग थे वो कबल वक्त इंतखाबात के अंदर उन्होंने वोट डाल दिया था, इसलिए इतना ज्यादा रश नजर नहीं आया। लेकिन देहात के अंदर जो यहाँ पर देहात है और ज्यादातर रिपब्लिकन है वो बड़ा टर्न आउट रहा। वहाँ पे खवातीन भी ज्यादा तादाद में की है। अब ये नहीं पता कि वो किसको वोट दिया, कि वो खवातीन जो है उनका भी इशू चल रहा है यहाँ पर। लेकिन ये जो रियासत है वो रिपब्लिकन रियासत है। यहाँ पर टेक्सास से 2 जो मुसलमान पाकिस्तानी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं वो भी बासानी जीतने के उनके इम्कान थे। यहाँ डैलस से तो जो सलमान भोजानी है उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं है। तो यहाँ पर टर्न आउट काफी अच्छा रहा है। और लेकिन यहाँ शहरों के अंदर टर्न आउट जो है, क्योंकि ऑलरेडी वोट ज्यादा लोग दे चुके थे, इसलिए टर्न आउट बहुत कम रहा है अपना उस लिहाज से। लेकिन अगर आप देखें टेक्सास के अंदर, जो पूरा टेक्सास जो है वो इस वक्त जो देहात है उसके अंदर बहुत ज्यादा टर्न आउट रहा। और अभी पोलिंग स्टेशन जो है वो बिल्कुल तकरीबन बंद हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं, ये पोलिंग स्टेशन है जिसपे अभी अमला जो है वो वोटों की गिनती कर रहा है। यहाँ पे तकरीबन जो है अभी आप देख रहे कोई भी बंदा और शख्स नजर नहीं आ रहा। जो लोग थे वो वोट दे के जा चुके हैं। 15 मिनट हुए हैं, अभी 15 मिनट हुए हैं, तो यहाँ पर जो है वोटिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है। जी ठीक है। अच्छा, पोलिंग का जो सिलसिला है वो पुरम तौर पर कंप्लीट हुआ है? किसी तरह की कोई गहमा गहमी, कोई हंगामा रही तो देखने में नहीं आई यहाँ पर? नहीं, यहाँ टेक्सास के अंदर बाकायदा बोले पुरअमन तरीके से जो है वो इंतखाब हुए हैं और कोई भी ऐसा वाकया रिकॉर्ड में नहीं आया कि यहाँ पर कोई इस तरह का कोई वाकया रूनुमा हुआ। सब लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से वोट दिए। और यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो मतलब है कि जो मुसलमान हैं वो भी ट्रंप को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और काफी जो है वो कमाला हैरिस को भी कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो मुसलमान हैं यहाँ पर जो रहने वाले हैं उन्होंने ट्रंप को या थर्ड पार्टी को सपोर्ट किया। दीजिएगा कि टेक्सास का बैकग्राउंड क्या रहा है? 2020 समेत गुज़िश्ता जितने इलेक्शंस हुए हैं ज्यादातर कौन सी जमात यहाँ पर फेवरेबल रही है? जी, यहाँ पर बुश जिस वक्त यहाँ से गवर्नर का इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, तो वो फर्स्ट टाइम रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पर आई थी। उससे पहले ये रियासत डेमोक्रेटिक रियासत कहलाती थी, लेकिन इस वक्त और जब से लेके अब तक ये बिल्कुल रेड रियासत में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ पर जो इलेक्शन होता है उसको बिल्कुल रिपब्लिकन का गढ़ तस्वूर किया जाता है। जी ठीक। अच्छा, मजमूई तौर पर अमेरिका में इंतखाबात को किस तरह से देखा जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से? और चूंकि दोनों जो सदारती उम्मीदवार हैं, कहा जा रहा है कि 50% चांसेस हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का मुकाबला देखने में आ रहा है। तो मजमूई तौर पर अवामी राय क्या है इन इंतखाबात के हवाले से? इसके बाद कितने बेहतर नताइज और बेहतर उनकी जिंदगी के ऊपर इसके असरात मरतब हो सकते हैं? क्या कहना है लोगों का? जी, लोगों का कहना है जो माशी अगर पॉलिसियों को देखें तो लोग ट्रंप को लाइक करते हैं, लेकिन जो खवातीन के इश्यूज हैं स्पेशली उस पर टेक्सास भी शामिल है। यहाँ पर औरतों के निकलने की वोट की ज्यादा वजह यह भी है कि यहाँ पर जो खवातीन को इस्कात हमल का जो मसला चल रहा है उस पर जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका अच्छा व्यू है उनके लिहाज से, लेकिन जो रिपब्लिकन है वो इस इस्कात हमल के खिलाफ है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो टर्न आउट जो हो रहा है वोट का वो इन इश्यूज पर ज्यादा हो रहा है। जी ठीक है। अच्छा, अगर इश्यूज की बात की जाए तो अमेरिका के ऑन होल जो इश्यूज हैं, जीतने वाला जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी सदर बनेगा,
سب سے جو پہلے اور سب سے جو امپورٹنٹ چیلنجز ہوں گے وہ کیا ہوں گے امریکی معیشت سمیت؟ امریکی معیشت سمیت یہاں پر جو چیلنجز ہیں مختلف جن کو نمٹنا ہوگا اس کے لیے جو ہے دونوں پارٹیوں کے اپنے اپنے منشور دیے ہوئے ہیں، لیکن اب دیکھ رہی ہے کہ لوگ جو ہے لوگوں کا جو خیال ہے وہ ٹرمپ کی بات پہ یقین بھی نہیں کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ بھی میں جنگ بند کرا دوں گا، تو کئی مسلمانوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے، لیکن دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو ایشوز ہے لوگ جو ہے زیادہ تر جو ووٹ ٹرمپ کو دے رہے ہیں وہ معیشت کی بحالی کے لیے دے رہے ہیں۔ یہاں پہ کافی بے روزگاری اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ جو ہے وہ ہماری جو نوجوان قیادت ہے اس کے اندر اور ساری جو بھی نوجوان ہیں یہاں کے مقامی امریکی اور پلس مسلمان جن کو بھی آپ لے لیں، نوجوان زیادہ تر ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو دے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ریاست ہے جس پہ میں ہوں ریپبلکن ریاست ہے، تو یہاں پر دیہاتی جو ووٹ ہے وہ بالکل ایک ریپبلکن گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اصل مقابلہ جو ہو رہا ہے وہ میں نہیں سمجھتا صدارتی انتخاب کے ہو، لیکن اصل مقابلہ جو ہو رہا ہے وہ مقابلہ یہاں پر ٹیڈ کروز اور پولنگ کا ہے، جو کہ یہاں پر ٹیکساس ریاست کے سینیٹ کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ جی ٹھیک، اچھا زاہد، مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو 50 میں سے جو 43 اسٹیٹس ہیں ان کے اندر جو دونوں پارٹیوں کی پوزیشن ہے پہلے سے ہی کافی حد تک واضح ہے، اور ان کے مطابق جو 441 الیکٹورل ووٹ ہے تقریباً 222 جو سرویز کہتے ہیں اس کے مطابق 222 ہیرس اور 219 کے قریب جو ہے وہ ٹرمپ کے الیکٹورل ووٹ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوئنگ سٹیٹس آ جاتی ہیں، 93 الیکٹورل ووٹ جو ہیں یہ جیت کا فیصلہ کریں گے۔ یہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ان میں کون سی ریاستیں، کون سی جو سٹیٹس ہیں کس امیدوار کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتی ہیں؟ ابھی اس وقت کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ اس وقت جو سوئنگ ریاست ہے اس میں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ آخری وقتوں کے اندر ووٹ دیتے ہیں اور وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ہمارے فیور میں جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو مین ایشو ہے اکانومی ایشو ہے اور خواتین کے اسقاط حمل کا ایشو ہے، جو کہ مین یہاں پر امریکہ کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ریاستوں کے اندر ووٹر کس تعداد میں باہر نکلتے ہیں جو جس پروگرام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر جو بھی پروگرام ہوگا اگر وہ اکانومی کے جو حمایتی ہے وہ زیادہ نکلا ہے تو ظاہر ہے وہ پلڑا جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف جائے گا۔ اگر خواتین کے ایشو کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے خواتین زیادہ تعداد میں نکل آ جاتی ہے تو یہ جو ہے الیکشن جو ہے اپنا ہیرس کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اس وقت جو ایشو ہے میں یہ دو ایشو ہیں جس پر جو ہے الیکشن ہو رہا ہے۔ رائٹ، واشنگٹن سے واجد علی سید بھی ہمیں جوائن کیے ہیں۔ ہم نے ایک اسٹیٹ اسمبلی کے جو فاتح امیدوار ان سے بات بھی کی تھی، راجہ زاہد خانزادہ ہمارے ساتھ ٹیکساس سے شامل ہیں، ان سے ہم وہاں کی مزید اپڈیٹ لے سکتے ہیں۔ خانزادہ، آپ کس جگہ پر ہیں اب یہ جہاں پر ریزلٹ واچ کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، میں ابھی وہاں سے نکلا ہوں اور ابھی دوسری پارٹی کے اندر جا رہا ہوں۔ یہاں پہ ریپبلکن پارٹی کا جو گڑھ تصور کیا جاتا ہے ٹیرن کاؤنٹی فورٹ ورتھ، اس جگہ میں موجود ہوں۔ اور یہاں جو آپ کی ریپبلکن کچھ رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہے وہ بتائیے کہ وہ ان کا کیا پرسپشن ہے کہ یہ سوئنگ اسٹیٹس کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہی اصل میں ریزلٹ اس کو جو ہے وہ ترتیب دیں گی۔ یہاں پر میری جو ریپبلکن پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان سے بات ہوئی اور وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ نیکسٹ 47 پریزیڈنٹ ہوگا، اور وہ بڑے آپٹیمسٹک ہیں اس کے لیے کہ ان کو یہ امید ہے بالکل 99% کہ ٹرمپ جو ہے وہ نیکسٹ پریزیڈنٹ ہوں گے۔ لیکن اس کا پاتھ کیا ہوگا؟ وہ کون سی سوئنگ اسٹیٹس ہوں گی جن کو وہ ون کر کے وہاں تک پہنچیں گے؟ کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ وہ کون سی ایٹ لیسٹ 3 to 4 اسٹیٹس ہیں جن کو وہ ون کر لیں گے۔ پنسلوینیا، جی ہاں، پنسلوینیا کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ پنسلوینیا ہمیں لینی چاہیے، تو اس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ اور یہاں پر جو ہے ابھی الیکشن واچ پارٹی جاری ہے، ریپبلکن پارٹی یہاں سے تو جیت چکی ہے ٹیکساس سے، لیکن کافی لوگ جو ہے وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جو ووٹ کا پورا رزلٹ آئے تو اس کے بعد پتہ لگے ان کو کہ واقعی جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ٹرمپ بن رہے ہیں یا کمالا ہیرس۔ راجہ زاہد خانزادہ ٹیکساس سے تفصیل بتا رہے تھے۔ واجد علی سے امریکہ میں ہونے والے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہو جانے پر ٹیکساس میں رہنے والے پاکستانیوں سمیت تارکین وطن کا کیا کہنا ہے اور اس وقت کیا ماحول ہے، بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے راجہ زاہد اختر خانزادہ۔
अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में यहाँ पर जो तारिकीन वतन जो गैर कानूनी है उनके अंदर बेचैनी है, उनको अपने मुस्तकबिल का खतरा महसूस हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, जबकि हमने पाकिस्तानी और दीगर जो यहाँ पर कम्युनिटी है उनसे मालूमात की। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, काफ़ी लोग तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, वो इंतहाई खुश नजर आ। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस अपनी शिकस्त का ऐलान करने और स्पीच करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। होने वाले इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब हो जाने पर टेक्सास में रहने वाले पाकिस्तानियों समेत तारिकीन वतन का क्या कहना है और इस वक्त क्या माहौल है, बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे राजा जाहिद अख्तर खानजादा। अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में यहाँ पर जो तारिकीन वतन जो गैर कानूनी है उनके अंदर बेचैनी है, उनको अपने मुस्तकबिल का खतरा महसूस हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, जबकि हमने पाकिस्तानी और दीगर जो यहाँ पर कम्युनिटी है उनसे मालूमात की। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, काफ़ी लोग तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, वो इंतहाई खुश नजर आ।